In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are having a great time. As we have completed part 2 explanation from the chapter Hitchhiker, let's move to the part 3. First, I want to tell you where we end the last video. लास्ट वीडियो में हिचहाइकर ने अपनी पॉकेट से टोबैको टिन और पैकेट ऑफ सिगरेट पेपर्स निकाले और उसे रोल करके सिगरेट बनाने लगा। मैं ये सब करते हुए तिरछी नज़र से उसे देख रहा था और जिस स्पीड से वो ये सब कर रहा था वो इनक्रेडिबल था। मैंने फिर कहा कि मैंने इससे पहले किसी को इतनी तेज़ी से सिगरेट रोल करते हुए नहीं देखा। अब आगे He sat back and smiled. It pleased him very much that I had noticed how quickly he could roll a cigarette. You want to know what makes me able to do it? He asked. वो ये सुनकर मुस्कुराया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने उसकी स्किल की तारीफ की। फिर उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं ये कैसे कर लेता हूँ? Go on then. तो बताइए। उसने कहा, It's because I have got fantastic fingers. These fingers of mine, he said, holding up both hands high in front of me, are quicker and cleverer than the fingers of the best piano player in the world. ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे फिंगर्स बहुत फैंटास्टिक हैं। फिर उसने अपने दोनों हाथों हैंड्स को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरी ये उंगलियां दुनिया के किसी भी बेस्ट पियानो प्लेयर से ज़्यादा क्विकर और क्लेवरर हैं। I glanced at his fingers. They were so beautifully shaped, so slim and long and elegant. They didn't seem to belong to the rest of him at all. They looked more like the fingers of a brain surgeon or a watchmaker. मैंने उसकी फिंगर्स की तरफ देखा। उसकी फिंगर्स वाकई में बहुत ब्यूटीफुली शेप्ड थीं, बहुत स्लिम, लॉन्ग और एलिगेंट। वो फिंगर्स उसकी बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं। वो फिंगर्स तो किसी ब्रेन सर्जन या वॉच मेकर की लग रही थीं। My job, he went on, is 100 times more difficult than playing the piano. Any fool can learn to do that. But there is not one person in 10 million can learn to do what I do. Oh, about that. मेरी जॉब किसी पियानो को प्ले करने से 100 टाइम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पियानो तो कोई फूल भी प्ले कर सकता है। कोई हो लाखों में कोई एक होता है जो वो कर सके जो कि मैं करता हूँ। Then I said, amazing. You are darn right. It's amazing, he said. उसने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम. It's amazing. I was taking the car along slowly now to make quite sure I wasn't stopped again. मैंने अपनी कार की स्पीड अब स्लो रखी हुई थी। मैंने इस बात का ध्यान रखा हुआ था कि मुझे दोबारा स्पीडिंग की वजह से कोई ना रोके। Suddenly, my passenger was holding up a black leather belt in his hand. Ever seen this before? He asked. The belt had a brass buckle of unusual design. अचानक से ही मेरे पैसेंजर ने अपने हाथ को उठाया तो उसने एक ब्लैक लेदर बेल्ट को पकड़ा हुआ था। पैसेंजर ने कहा कि इससे पहले इसे देखा है? Hey, I said, that's mine, isn't it? That it is mine. Hey, ये तो मेरा है ना? ये मेरा है। I reached down and felt for my belt. It was gone. मैंने हाथ से अपनी बेल्ट को टच करने की कोशिश की। मेरा बेल्ट अब वहाँ नहीं था। You mean you took it off me while we have been driving along? I asked, flabbergasted. इसका मतलब तुमने मेरा बेल्ट निकाल लिया जब हम ड्राइव कर रहे थे। Flabbergasted mean हैरान हो जाना। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। He nodded, watching me all the time with those little black ratty eyes. उसने हाँ में सर को हिलाया और वो अपनी ratty eyes से continuously मुझे देख रहा था। That's impossible, I said. I'd have seen you doing it. That's impossible. मैंने ज़रूर देखा होता तुम्हें ये करते हुए। But you didn't, did you? He said, triumphant. He dropped the belt on his lap, and now, all at once, there was a brown shoelace dangling from his fingers. And what about this then? He exclaimed, waving the shoelace. Anyone around here missing a shoelace? पर तुमने नहीं देखा, है ना? उसने बहुत ही फख्र से कहा और उस बेल्ट को अपनी लैप पे रख दिया और अब उसने अपने हाथ में एक ब्रो शूलेस उठाया हुआ था। और इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ कोई है जिसकी शूलेस गुम हो गई है? I glanced down at my shoes. The lace of one of them was missing. Good grief, I said. मैंने नजरें अपने शूज की तरफ की तो वो एक शू से लेस गायब था। Good grief, ये तो हद है। How did you do that? I never saw you bending down. तुमने ये कब किया? मैंने एक बार भी तुम्हें नीचे झुकते हुए नहीं देखा। You never saw nothing?
he said proudly. And you know why? तुम कुछ देख ही नहीं सकते थे और पता है ऐसा क्यों है? Yes, I said, because you have got fantastic fingers. मैंने कहा यस क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स बहुत फैंटास्टिक हैं. Exactly right, he cried. He sat back and smiled. He knew he had impressed me greatly with those two tricks. Exactly right. फिर वो मुस्कुराते हुए पीछे होकर बैठ गया. वो जान गया था कि उसने अपनी इन दो ट्रिक्स से मुझे greatly impressed कर दिया है. I don't want to be late. He said, what time is it? मैं लेट नहीं होना चाहता. क्या टाइम हो रहा है? पैसेंजर ने कहा. There is a clock in front of you. मैंने कहा कि तुम्हारे सामने क्लॉक है. I don't trust car clocks, he said. What does your watch say? मैं कार क्लॉक्स पर ट्रस्ट नहीं करता. तुम्हारी वॉच में क्या टाइम हो रहा है? Let's move to the page number 135. I hitched up my sleeve to look at the watch on my wrist. It wasn't there. मैंने अपनी स्लीव को ऊपर किया ताकि अपनी वॉच में टाइम देख सकूं, पर मेरी वॉच अब वहां नहीं थी. He held out his hand and there was my watch lying in his palm. Nice bit of stuff this, he said. Superiority quality, 18 karat gold, easy to sail. It's never any trouble getting rid of quality goods. उसने अपना हाथ उठाया तो उसके पाम पर मेरी वॉच थी. फिर उसने कहा नाइस बिट ऑफ स्टफ, सुपीरियर क्वालिटी, 18 कैरेट गोल्ड, बहुत ईजिली सेल होगी. इतनी गुड क्वालिटी को सेल करना कभी मुश्किल नहीं होता. I would like it back, if you don't mind, I said rather huffily. मैं चाहूँगा कि ये मुझे वापस दे दो, अगर तुम बुरा ना मानो. मैंने गुस्से से कहा. Huffily means गुस्से से कहना. He placed the watch carefully on the leather tray in front of him. I wouldn't nick anything from you, governor, he said. You are my pal, you are giving me a lift. उसने बहुत केयरफुली वो वॉच अपने सामने लेदर ट्रे में रख दी. फिर उसने कहा कि मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं लूँगा गवर्नर. यू आर माई पल, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे लिफ्ट दी है. आई एम ग्लैड टू हेयर इट, आई सेड. ये सुनकर मुझे अच्छा लगा. ऑल आई एम डूइंग इज आंसरिंग योर क्वेश्चन, ही वेंट ऑन. यू आस्क्ड मी व्हाट आई डिड फॉर अ लिविंग एंड आई एम शोइंग यू. मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए. So you are a pickpocket, I said. तो तुम एक pickpocket हो. I don't like that word, he answered. It's a vulgar word. Pickpockets are coarse and vulgar people. They lift money from blind old ladies. मुझे ये word बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ये बहुत vulgar word है. Pickpockets बहुत coarse और vulgar लोग होते हैं जो old blind ladies के पैसे चोरी करते हैं. What do you call yourself then? तो तुम अपने आप को क्या कहते हो फिर? Me? I'm a fingersmith. I'm a professional fingersmith. He spoke the words solemnly and proudly. उसने फखरिया तौर पे कहा कि मैं एक fingersmith हूँ, एक professional fingersmith. I have never heard that word before, I said. Did you invent it? मैंने इससे पहले ये word नहीं सुना. क्या ये तुमने invent किया है? Of course, I didn't invent it, he replied. You have heard of a goldsmith and a silversmith, for instance. They are experts with gold and silver. I am an expert with my fingers, so I am a fingersmith. Of course, मैंने invent नहीं किया. तुमने इससे पहले गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ सुना होगा, लेकिन वो गोल्ड और सिल्वर के एक्सपर्ट होते हैं. मैं अपनी फिंगर का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं फिंगर स्मिथ हूँ. एंड दैट्स वाई यू गो टू द रेसेस. तो इसीलिए तुम रेसेस में जाते हो. Race meetings are good, he said. You just stand around after the race watching for the lucky ones to draw their money. And when you see someone collecting a big bundle of notes, you simply follows after him and helps yourself. But I never takes nothing from a loser. Nothing from poor people neither. I only go after the winners and the rich. रेस मीटिंग बहुत अच्छी होती है. आपको सिर्फ वहाँ रेस के बाद खड़े होकर ये देखना होता है कि कौन जीता, और जब आप देखते हैं कि कोई बिग बंडल ऑफ नोट्स निकल रहा है, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना होता है और अपनी हेल्प कर लेनी होती है. लेकिन मैंने आज तक किसी लूज़र के पैसे नहीं लिए और ना ही किसी पुअर के. मैं हमेशा रिच और विनर्स के पीछे ही जाता हूँ. दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, मैंने तंजिया कहा. We drove on for a while without talking. फिर हम कुछ देर खामोशी से ड्राइव करते रहे. That policeman's going to check up on you pretty thoroughly, I said. Doesn't that worry you a bit? वो पुलिसमैन तुम्हारे बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेगा. क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? Nobody's checking up on me, he said. कोई मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा.
Of course they are. He's got your name and address written down most carefully in his black book. ऑफ कोर्स वो करेंगे, उसने तुम्हारा नाम और एड्रेस अपनी ब्लैक बुक में लिखा था. द मैन गेव मी अनदर ऑफ हिज स्लाई रेटी लिटिल स्माइल्स. ही सेड, सो ES, but I'll bet E and got it all written down in his memory as well. अब यहाँ भी देख लें कितनी टूटी फूटी और स्लैंग लैंग्वेज टाइप यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कौन कह रहा है, यहाँ हिच हाइकर बात कर रहा है. उस आदमी ने फिर से मुझे अपनी रेटी स्माइल दी. हाँ लिखा तो था, पर उसने सब कुछ अपनी मेमोरी में महफूज नहीं किया था. व्हाट्स मेमोरी गॉट टू डू विद इट, आई आस्क्ड. इसका मेमोरी से क्या ताल्लुक है? Let's move to the page number 136. It's written down in his book, isn't it? Yes, Governor, it is. But the trouble is he's lost both books. The one with my name in it and the one with yours. In the long, delicate fingers of his right hand, the man was holding up in triumph the two books he had taken from the policeman's pockets. पुलिसमैन ने सब कुछ अपनी बुक में लिखा था, ऐसा ही है ना? उसने कहा, यस गवर्नर, ऐसा ही है, बट ट्रबल ये है कि उसकी दोनों बुक्स गुम हो गई हैं. एक जिसमें मेरा नाम था और दूसरी जिसमें तुम्हारा नाम था. और फिर मैंने देखा कि उसने अपनी नाजुक लंबी उंगलियों में वो दोनों बुक्स उठाई हुई थी, वो बुक जो कि उसने पुलिसमैन से चुराई थी. यानी हिच हाइकर ने और भी काम किए थे, और एक ये भी काम किया कि अगर ड्राइवर को फंसाया तो ड्राइवर को बचाया इस तरह, क्योंकि वो पिक पॉकेट था, तो पिक पॉकेट की वजह से उसने वहाँ से भी बुक्स चुरा ली थी. इस स्टोरी में बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो कि फॉर्मल और पोलाइट कन्वर्जेशन में यूज़ नहीं होते. ऑथर ने यानी रोल्ड डैल ने ये वर्ड्स इसलिए यूज़ किए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हिच हाइकर बोल रहा है. आपको पता चल जाए कि हिच हाइकर और ड्राइवर यानी कि जो नरेटर हैं उनकी स्पीच में बहुत बड़ा फ़र्क है. ड्राइवर एक पढ़ा लिखा और एक रिफाइंड पर्सन है, जबकि हिच हाइकर नहीं है. So students, this brings me to the end of this story. I hope you find this story very interesting. Till then, take care, keep smiling, have a wonderful day. Thank you.